So, good afternoon, students. Let us start. Okay. See, this is our road work, earthwork in roads. We were continuing. Okay, and we have already learned there are three methods, right? This one and this one we have already discussed. Formula of midsection and formula of trapezoidal, and we have also discussed one numerical based on these two methods. See, in this method, in the first method, what we are doing, we are first averaging the depth. Okay, then we are calculating the area. Okay, then multiplying that area with the length, we will get the volume. And here what we are doing, here for individual depth, first we are calculating area, then we are taking the average area, then multiplying that with the length, we are getting the volume. Okay, so main difference is this is the main difference between the two. Okay, now comes the third method, which is prismoidal. So basically, it is also same as the trapezoidal rule, only the difference is that here the formula is only the difference. See, cross sectional area formula we know for trapezium. This is the formula BD plus SD square. Okay, so if we multiply L with this area, we will get the volume. But since our depth is varying, see, it is a first section. Here depth is varying, right? Here again another depth. Here again another depth, right? So this height is increasing. It's in increasing order. So obviously your area will also be increasing. So we can't use only one area and multiply it with the length to get the volume. What we have to do, we have to find some average value. Okay, average either of the area. In the as per the first method, we are taking the average of the d values. Okay, d1 and this one, or we have to take the average of the area as per the second method. Okay, so suppose this is a segment of length L. Okay, the first end, suppose area is a1 with the height of d1. Okay, at the second end, last end, suppose the area is a3 with the height of d3. Okay, whereas in somewhere in the middle section, the middle section cross section is am with depth of dm. Then how to get the volume? Okay, so this is the formula. Okay, so get the volume, this is the formula, a1, okay, plus 4am plus a2. Okay, this will be a2. Okay, this is a1 a2. 4am is 4am plus a2 by 6 into L will give us the volume of this whole segment. Okay, so this is the main formula. Now see what happens. Say for example, the first end is suppose a1, then comes the a2, then comes the a3. Okay, now the distance is what, this is L, this is L, this is one segment, this is another segment. Okay, तो पहले में क्या किए थे हम, इन द फर्स्ट केस यहाँ पे हमने किया था कि ये एक सेगमेंट पकड़ लिया जिसका लेंथ अगर L है. ओके, तो वो फर्स्ट सेगमेंट का फर्स्ट एंड का अगर एरिया A है और लास्ट एंड का एरिया अगर दिस इज A2. ओके, दिस विल बी A2, एक्चुअली दिस विल बी A2, दिस विल बी A2 एंड दिस इज D2. ठीक है, तो ये एक होल सेगमेंट का, ये होल सेगमेंट का सपोज फर्स्ट एंड का एरिया A1 है, D है D1, और अभी कौन ज्वाइन हुआ? ओके देखो, ठीक है, अगर ये पूरा सेगमेंट हम पकड़ रहे जिसका लेंथ इज L, तो इसका एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है, और ये वाला बीच में है. ओके, दिस इज इन द मिडल समवेयर. ठीक है, अब हम बोल रहे कि इसको हटा के अब हमने दो सेगमेंट पकड़ लिया. ठीक है, तो दो सेगमेंट का देखो, ये है फर्स्ट सेगमेंट, ये है सेगमेंट सेकेंड सेगमेंट, दोनों का डिस्टेंस सेम है. ठीक है, L L है, तो ऑब्वियसली ये A2 क्या हो जाएगा तब, इट विल बी इन बिटवीन दिस टू, राइट. दोनों के बीच में तुम्हारा ये A एरिया आ रहा है. अब ये जो 4am था, अब am के जगह पर यहाँ पे A2 आ जाएगा. देखो, ठीक,
सो द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्रिज्मोइडल ऑफ लेंथ, ये पूरा हम एक प्रिज्मोइडल पकड़ लिया जिसका लेंथ क्या है, देखो L प्लस एल दैट इज 2L। व्हेन इट इज 2L, अगर ये लेंथ है इसका, ये प्रिज्मोइडल का, तो फिर इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट एंड ओके प्लस लास्ट एंड प्लस 4 टाइम्स ऑफ मिडल एंड। तो मिडल में तो यही है, देखो ये भी L है, ये भी L है, सो दिस सेगमेंट इज एट द मिडल सेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट एंड प्लस लास्ट एंड, ठीक है, फर्स्ट एंड एरिया प्लस लास्ट एंड एरिया, देखो फर्स्ट एंड एरिया प्लस लास्ट एंड एरिया प्लस 4 टाइम्स ऑफ द मिडल एरिया, ओके, डिवाइडेड बाय 6 इनटू लेंथ ऑफ द प्रिज्म। तो ये टोटल लेंथ कितना है ये प्रिज्म का, L प्लस एल 2L है। अब सिमिलरली देखो क्या हो जाएगा, ये तो एक स्ट्रेच ऑफ द रोड हुआ, वैसे ही यहाँ पे भी और स्ट्रेच हो जाएगा, राइट, वहां पे भी और पीछे और स्ट्रेच हो जाएगा तुम्हारा, ऐसा ही, ठीक है। तो उसका भी अगर हम पूरा लेंथ 2L पकड़ेंगे, ये पूरा लेंथ अगर हम पकड़ेंगे 2L, ठीक है, दिस होल लेंथ एज 2L, ठीक है। तो इसका फर्स्ट एरिया कौन सा है बोलो, फर्स्ट एरिया फॉर सेकेंड सेगमेंट, व्हाट इज द फर्स्ट एरिया, ये पूरा हुआ फर्स्ट सेगमेंट, ओके, और ये पूरा सेकेंड सेगमेंट ये वाला हो रहा है। तो इस वाले का फर्स्ट एंड कौन सा है, तब ये वाला एरिया है, ठीक है, विच इज A3। सो नाउ वी कैन राइट फॉर द सेकेंड प्रिज्मोइडल, तुम्हारा फर्स्ट एंड है तुम्हारा A3, अब लास्ट में जो एंड होगा उसका एरिया ऑब्वियसली A4 होगा, सॉरी A5 होगा, और बीच में जो होगा वो A4 होगा, देखो। सो A3 प्लस A5 प्लस 4AM, ओके, AM की जगह पर यहाँ पे 4 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे और एक जो एरिया आएगा सेक्शन बीच में, ठीक है। so that will be your, this is A3, then this will be your A4, okay, then last वाला हो जाएगा A5, ओके, विच एरिया, ये जो वाला, ऐसा अगर ड्रॉ करेंगे हम ट्रेपेजोइडल एरिया, ठीक है, वैसे ये वाला जो एरिया है, ओके। तो लाइक दिस इफ वी कीप ऑन एडिंग, ओके, देखो लास्ट में जाके लास्ट वाला प्रिज्म का ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, देखो लास्ट है तुम्हारा कौन सा, AN, ठीक है। अब ये वाला कौन सा है, देखो 5 - 2, राइट, तो यहाँ पे हमने लिख लिया AN - 2, और ये वाला कौन सा है 5 - 1, सो देखो AN - 1, ओके। सो ये फॉर्मूला लास्ट में आ रहा है। नाउ सिंपली व्हाट वी विल डू, इसको सिंप्लीफाई करके दिस इज द फॉर्मूला, ओके। फॉर फर्स्ट सेगमेंट जिसका लेंथ 2L है, ये वॉल्यूम है, फॉर सेकेंड सेगमेंट जिसका लेंथ 2L है, ये है, वैसे करते करते हम जाएंगे। देन लास्टली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एड अप ऑल दिस वॉल्यूम। तो अगर हम ऐड करेंगे, देखो ये फर्स्ट वाला सेगमेंट का, ये सेकेंड सेगमेंट का, वैसे करते करते सब सेगमेंट का हमने वॉल्यूम ऐड कर दिया, ठीक है। देन वी आर टेकिंग L/3 कॉमन, L/3 कॉमन है सब में, ठीक है। तो बचा क्या, A1 प्लस 4A2 प्लस A3 ये हुआ, फिर A3 प्लस 4A4 प्लस 5 ये हुआ, वैसे करते करते ये वाला बचा, राइट। अब सी यहाँ पे A1, देर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ A1 एंड वन वैल्यू ऑफ AN, ठीक है। वेयर एज ये वाला कितना है देखो, तो इसको हमने इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है, A1 AN, ये सिंगल सिंगल है, सिंगल लो को अलग कर दिया। अब देखो 4 टाइम्स वाला कितना है, A2 है, फिर A4 है, वैसे A6 होगा, फिर AN-1, राइट, ऐसा करके। तो 4 को हम कॉमन लेके देखो A2 A4 A6, अब बचा कौन सा है A3, देखो यहाँ पे A3 ऐड कर दो 2A3 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे A5 होगा, यहाँ पे भी A5 होगा, तो 2A5। तो देखो सब ऑड है कितना, 2 बार, और इवन नंबर कितना है 4 बार, whereas लास्ट और फर्स्ट एक बार ही आएगा, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रिज्मोइडल, okay. So L/3 into 1 is first plus last plus 4 even plus 2 odd, okay. So this formula is the Simpson's 1/3 rule, okay. इसको प्रिज्मोइडल फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, या हम लोग सिम्पसन्स 1/3 रूल भी बोल सकते हैं। सो फॉर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम, ठीक है, हम लोग सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज कर सकते हैं और ट्रेपेजोइडल रूल फॉलो कर सकते हैं। तो देर आर बेसिकली 3 फॉर्मूलाज, तो ये 3 फॉर्मूला हम लोग क्लियर हो गया है, ओके। सो टुडे वी विल बी सॉल्विंग वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द 2 फॉर्मूलाज, ओके। मतलब कोई भी फॉर्मूला से तुम डिराइव कर सकते हो, सपोज दिस इज द क्वेश्चन, ओके। सो ये क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा है, विजिबल हो रहा है सबको, बोलो। इज इट विजिबल क्वेश्चन, देखो
क्वेश्चन में यस क्या मैम। दिया है, प्रिपेयर एन एस्टिमेट फॉर द पोर्शन ऑफ अ रोड फ्रॉम चेन एज 15 to 22। देखो रास्ता तुम्हारा कहीं से भी स्टार्ट होता है, राइट। हम लोग ऐसे ही बनाते बनाते एस्टिमेशन करते करते एक ऐसे चेनेज नंबर में आ गए, सपोज 14 नंबर चेनेज में आ गए, ओके। तो हम लोग का आज का जो भी अर्थवर्क होगा वो हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, 14 चेनेज से 22 चेनेज तक, ठीक है। अगले दिन अगर नेक्स्ट होगा तो 23rd चेनेज से रिमेनिंग चेनेज तक, ठीक है। तो ये होगा 14 to 22 तक हम लोग करेंगे, ठीक है। इट में भी जीरो, पिछले जो प्रॉब्लम दिया था वहाँ पे जीरो से लेकर सिक्स चेनेस पॉइंट तक था, राइट, या 5th चेनेस पॉइंट तक था। तो वैसे यहाँ पे 14 से 22, इट डजेंट मैटर, कुछ भी हो सकता है, ओके। ये चेनेस का कोई वो मत करो, क्योंकि रास्ता कंटिन्यूस स्ट्रक्चर है ना, इसीलिए। सो देखो, प्रिपेयर एन एस्टिमेट फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द रोड फ्रॉम चेन एज 14 to 22 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा विच आर गिवन बिलो, ठीक है। विच डाटा गिवन बिलो, ड्रॉ ऑल्सो द लॉन्गिट्यूडनल, इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ड्रॉ करने के लिए बोला है। एंड टिपिकल क्रॉस सेक्शन, मतलब जो तुम्हारा एम्बैकमेंट है, ये जो एम्बैकमेंट है, ठीक है, इसको लॉन्गिट्यूडनल, मतलब इफ यू विल वॉच फ्रॉम दिस साइड यू विल गेट द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, इफ यू वॉच फ्रॉम दिस साइड यू विल गेट द क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। तो वो डायग्राम हमको करने के लिए बोला है यहाँ पे। देखो दोनों ही डायग्राम दिखाना है, लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल भी, फॉर कटिंग एंड बैंकिंग, ठीक है। एक रास्ता है, अब पूरा रास्ता में तुम्हारा बैंकिंग ही हमेशा देना जरूरत नहीं है, या हमेशा कटिंग ही रहेगा, ऐसा नहीं है, राइट। आवर अर्थ इज सरफेस इज ऑन्डुलेटिंग, राइट, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, फॉर्मेशन लेवल के। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट डिफरेंस कि कौन सा लेवल ऊपर है, ग्राउंड लेवल ऊपर है या फॉर्मेशन लेवल ऊपर है, डिपेंडिंग अपॉन इट वी कैन से कि कहाँ पे कटिंग देना चाहिए, कहाँ पे तुम्हारा फिलिंग होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए देखो दो सेक्शन ही बोला है, क्या है, कटिंग भी है बैंकिंग भी है। पिछले वाले सम में एवरीथिंग वाज बैंकिंग, ओके। ऑल्सो टर्फिंग विद द ग्रास सीड्स shall be provided for the side of the embankment, मतलब ये जो साइड है ना, I think you have seen when you are going from some highways or some railways से अगर भी जाते हो, रेलवे लाइन से भी अगर, ट्रेन से भी अगर जाते हो, तो देखना एम्बैकमेंट के जो एम्बैकमेंट होता है, यहाँ पे रेल लाइन रहता है, एम्बैकमेंट में देखना हम लोग ये सरफेस में कुछ स्टोन वर्क्स करते हैं और वी प्रोवाइड सम ग्रास, ठीक है। इसको ग्रास से कवर कर देते हैं, या हम लोग या स्टोन्स का स्लैब्स यहाँ पे बिठा देते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड टर्फिंग, ठीक है। तो ये कितना एरिया में हमको वो ग्रास ले करना पड़ेगा, प्लांट करना पड़ेगा, या कितना एरिया में हमको वो स्टोन स्लैब देना पड़ेगा, ये एस्टिमेट करना भी जरूरी होता है, ओके। सो टर्फिंग क्यों देते हैं, फॉर स्लोप स्टेबिलिटी, ठीक है, जिससे कि ये स्लाइड होके ना नीचे गिर जाए। इट इज बेसिकली व्हाट इट इज, वी आर डंपिंग सॉइल, राइट, फिर इसको रोल करके हम इसको वो कर दे रहे हैं, कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि ये स्लाइड होके नीचे आ सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वी आर डूइंग प्रोवाइडिंग सम, यहाँ पे ग्रास प्रोवाइड करते हैं, ग्रास प्लांट करते हैं, या स्टोन स्लैब्स देते हैं, जिससे ये स्टिफ रहे, राइट, स्लोप फेल ना हो जाए। सो इसको बोलते हैं टर्फिंग। सो टर्फिंग के लिए तुमको क्या चाहिए, कितना खर्चा होगा टर्फिंग में, उसके लिए वी मस्ट नो व्हाट इज द एरिया ऑफ टर्फिंग, मतलब ये जो साइड स्लोप का एरिया हमको चाहिए, ओके। तुमको ये भी निकालने के लिए बोला है यहाँ पे। देखो, टर्फिंग विद ग्रास सीड्स सेल बी प्रोवाइडेड फॉर द साइड्स ऑफ द एम्बैकमेंट, मतलब जहां जहां पे एम्बैकमेंट है वहां वहां पे हमने टर्फिंग करना है। तो वो एम्बैकमेंट का एरिया हमको निकालना है, ठीक है, साइड स्लोप का एरिया, मतलब ये जो दिखाई दे रहा है, ओके, या ये एरिया। तो और क्या बोला है, इसका कॉस्ट दे दिया है, मतलब पहले एरिया निकालो, फिर कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वी विल गेट द कॉस्ट, टोटल अमाउंट कितना होगा। तो यहाँ पे दिया है पर स्क्वायर मीटर टर्फिंग के लिए 2 रुपया यहाँ पे दिया है, या 200 रुपये, 2 रुपया दिया है, ठीक है, बहुत कम है, बहुत पुराना डाटा है, ओके। द रेट ऑफ अर्थवर्क इन कटिंग इज दिस मच पर क्यूबिक मीटर, मतलब ये जो अर्थवर्क, पहले वॉल्यूम निकालो, तो जितना अमाउंट ऑफ अर्थवर्क चाहिए कटिंग में उसको मल्टीप्लाई कर दो इस अमाउंट के साथ, वी विल गेट द टोटल कॉस्ट फॉर अर्थवर्क, ओके। वेरएज एम्बैकमेंट का इतना दिया है, मतलब 1 क्यूबिक मीटर एम्बैकमेंट बनाने के लिए इतना खर्चा लगता है। सो टोटल एम्बैकमेंट कितना है, वॉल्यूम निकालो, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, ठीक है। द फॉर्मेशन विथ ऑफ द प्रपोज रोड इज 12 मीटर, सो दिस इज बी, मतलब ये जो बी है ये बी दे दिया है 12 मीटर, ओके। एंड द साइड स्लोप इज 1.5:1, मतलब ये जो साइड स्लोप है एस इज टू वन कितना है, 1.5:1 है, ओके।
तो 1.5:1 दोनों केस में अलग है। एक कटिंग में है 1.5:1, बैंकिंग में 2:1। मतलब जहां जहां पे बैंकिंग होगा ये एस का वैल्यू 2 हो जाएगा, जहां जहां पे कटिंग होगा ये एस का वैल्यू, मतलब कटिंग मतलब कैसा है, कटिंग मतलब है तुम्हारा ये जो कटिंग में देखो ये भी तो साइड स्लोप है, ठीक है, ये जो स्लोप है साइड स्लोप, इसका एस है तुम्हारा 1.5 इन कटिंग, ठीक है, और इन केस ऑफ बैंकिंग एस का वैल्यू है 2। ओके, तो वही दिया है। अब ये कहाँ पे काम लगेगा, ये एस का क्यों स्लोप का तुम्हारा एरिया निकालने में काम लगता है। ओके, और एज वेल एज द ये वाला एरिया टर्फिंग एरिया निकालने के वक्त भी ये एस का वैल्यू काम में लगता है। ओके, but today I will be teaching only how to estimate the total cost and the total embankment and the total banking। so, ठीक है, total cutting मतलब earthwork in cutting and earthwork in filling हम निकालेंगे। अब देखो, तो ये डाटा दिया गया है, किसका डाटा है, ये चेनेस का डाटा है, ठीक है। बेसिकली व्हाट वी नीड डी। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए डी चाहिए, डी का वैल्यू, ठीक है। फॉर दैट ओनली दे हैव गिवन दिस वैल्यू। सी चेन एज 14 नंबर चेन एज, ठीक है, और लेंथ कितना है, मतलब 14 से लेकर 15 तक लेंथ कितना है, दैट इज 30 मीटर। फिर 15th चेन एज से लेकर 16 चेन एज तक लेंथ कितना है, 30 मीटर। ओके, सो चेन एज दे हैव गिवन फ्रॉम 14 टू 22, देखो 14 टू 22 चेन एज दे दिया है नंबर। ओके, अब ये रिड्यूस लेवल ऑफ द ग्राउंड मतलब जीएल ग्राउंड लेवल का रिड्यूस लेवल दे दिया है, 14 चेन एज में कितना है, इतना है। ओके, फिर 15th में इतना है। नाउ रिड्यूस लेवल मतलब क्या है, मीन से लेवल से तुम्हारा वो पर्टिकुलर जिस पॉइंट में तुमने ये चेनेज बनाया है वो वाला पॉइंट का ग्राउंड जो सरफेस है वो मीन से लेवल से कितना ऊपर है, बोला है इतना ऊपर है, ठीक है। 15 चेनेज में जो ग्राउंड है उसका रिड्यूस लेवल फ्रॉम दी मीन से लेवल कितना ऊपर है, इतना है। कितना हाइट में है, मीन सी लेवल से कितना ऊपर में है, इतना हाइट में, ठीक है। वैसे 16 चेनेज पे ग्राउंड लेवल कितना है, 109.4, ठीक है, ये सब दे दिया है। और एक चीज लगा है क्या, द रोड फॉर्मेशन इज प्रपोज्ड एट यूनिफॉर्म फॉलिंग ग्रेडियंट, मतलब कि अगर तुम्हारा ये 14 चेनेज है, ठीक है, 14 नंबर चेनेज में तुमने यहाँ पे रेंजिंग रॉड लगा दिया, रिड्यूस लेवल हमने निकाल दिया है, ठीक है, यहाँ पे हमने रिड्यूस लेवल निकाला ग्राउंड का, ठीक है। तो बोला है कि यहाँ से तुम्हारा कैसा है, रोड वर्क विल बी इन फॉलिंग ग्रेडियंट, मतलब रोड वर्क कैसा हो जाएगा, रोड वर्क ऐसा फॉलिंग होगा। दिस इज हॉराइजॉन्टल, प्लीज रिमेम्बर दिस इज ट्रांस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है, मतलब कि गाड़ी ऐसा नीचे जाएगा। ये अगर गाड़ी है, सॉरी ये अगर गाड़ी है तो ये सॉरी मतलब कि ये अगर गाड़ी है तो गाड़ी इस तरफ जा रहा है। ओके, इस तरफ जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉलिंग ग्रेडियंट। ओके, ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे नीचे फॉल कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो बोला है द रोड फॉर्मेशन इज प्रपोज एट यूनिफॉर्म फॉलिंग ग्रेडियंट ऑफ व्हाट 1/200, ठीक है, 1/200 ऐसे नीचे जाएगा। ओके, एंड पासिंग थ्रू द ग्राउंड लेवल एट चेन एज 14, माने यहाँ अगर तुम्हारा ऐसा जा रहा है रास्ता, ऐसे से ऊपर से इस तरफ से आ रहा है तो ग्राउंड लेवल को क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे तुम्हारा ग्राउंड लेवल होगा। ओके, ग्राउंड लेवल इस वाले 14 चेनेज में ग्राउंड लेवल भी यहीं पर होगा, ठीक है। तो बोल ही दिया है कि 14 चेनेज में ये जो फॉर्मेशन लेवल है वो ग्राउंड लेवल को क्रॉस करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं एट दिस पॉइंट व्हाट इज द रिड्यूस लेवल ऑफ ग्राउंड एंड व्हाट इज द रिड्यूस लेवल ऑफ फॉर्मेशन लेवल, बोलो। ये पर्टिकुलर पॉइंट में, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट में ग्राउंड का रिड्यूस लेवल और फॉर्मेशन का रिड्यूस लेवल कितना होगा, कितना होना चाहिए, सेम मैम, सेम होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब देखो कितना होगा, ग्राउंड का तो बोला है 14 चेनेज में इट इज 108, ओके 108, तो ऑब्वियसली तुम 108.6, तो फॉर्मेशन का भी इस वाले पॉइंट में कितना होगा 108.6 ही होगा। ओके, तो ये डाटा तुमको
ध्यान में रखना है, ओके, फॉर ड्रॉइंग द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ओके। तो दिस इज द केस, और दिया है क्या, लेंथ ऑफ वन चेन इज 30 मीटर, मतलब अगर यहाँ पे एक चेनेज है और यहाँ पे और एक चेनेज है तुम्हारा, सपोज यहाँ पे 15th नंबर चेनेज है, तो दोनों के बीच का जो गैप है दिस इज 30 मीटर, ओके, ये दिया है। नाउ लेट अस ड्रॉ। तो पहले हम लोग थोड़ा ड्राइंग कर लेते हैं। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, फर्स्ट रिड्यूस लेवल ऑफ ग्राउंड दिया है, ठीक है। अब हमने बोला है वॉल्यूम निकालने के लिए पहले क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। लेंथ हमको दिया है, देखो 30 मीटर सेगमेंट का लेंथ दे दिया है, ओके, ईच सेगमेंट लेंथ इज 30 मीटर, ओके। और क्या चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला क्या है, देखो ए इज इक्वल्स टू बी डी प्लस एस डी स्क्वायर, ठीक है, बी डी प्लस एस डी स्क्वायर, ओके। तो हमको क्या क्या चाहिए एरिया निकालने के लिए, एंड वी नो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ए इंटू एल, ठीक है। तो यहाँ पे एल हमको दिया है, अब ए कैलकुलेट करना, ए कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, बी, बी इट्स ऑलरेडी गिवन 12 मीटर, ठीक है। एस भी दे दिया है, कटिंग के लिए कितना, बैंकिंग के लिए कितना दे दिया है यहाँ पे, ओके। अब बचा क्या, डी, ठीक है। तो अब हमको डी चाहिए, ठीक है, एक एक सेगमेंट का डी चाहिए। तो डी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, व्हाट इज डी, यहाँ पे देखो व्हाट इज डी, दिस इज योर फॉर्मेशन लेवल, दिस इज योर ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो ये डी क्या है, डी क्या लग रहा है, ये फॉर्मेशन लेवल ऊपर है, ग्राउंड लेवल नीचे है। सो व्हाट इज द डी, बेसिकली फॉर्मेशन लेवल का रिड्यूस लेवल यहाँ पे है, ठीक है, और ग्राउंड का रिड्यूस लेवल यहाँ पे है। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, डी का वैल्यू कैसे निकलेगा, बोलो, रिड्यूस लेवल ऑफ ম্যাম फॉर्मेशन, এখান থেকে তো মাইনাস করতে হবে ফরমেশন লেভেল यस টু यस, গ্রাউন্ড ठीक লেভেল। है। এখানে सपोज তো ये ম্যাম রাইজ এন্ড ফল বের করতে হবে না? করতে হবে, তো তার জন্যই তো বলছি कटिंग कहाँ पे है तुम्हारा, वो कहाँ पे है, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर फाइंडिंग, डी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो देखो इन दिस केस क्या हो रहा है कि ये तुम्हारा कुछ नहीं, डी के लिए हमको डिफरेंस चाहिए, वी नीड टू डू सब्ट्रैक्शन बिटवीन फॉर्मेशन, या मतलब दोनों का डिफरेंस चाहिए, ठीक है, दोनों का लेवल का डिफरेंस हमको चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू, ग्राउंड लेवल का तो रिड्यूस लेवल दे दिया है हमको क्वेश्चन में, इट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड रिड्यूस लेवल ऑफ ग्राउंड, ओके। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट रिड्यूस लेवल ऑफ फॉर्मेशन लेवल, ठीक है। तो उसके लिए एक डाटा क्या दिया है, उसके लिए एक डाटा दिया है कि तुमको, उसके लिए एक डाटा क्या दिया है, बोला है कि एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ये है 14 चैनल्स, ठीक है। तो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ये है फॉर्मेशन लेवल, देखो फॉर्मेशन लेवल ऐसा है, एक्चुअली जब हम लोग ड्राइंग करेंगे तो ऐसा डायग्राम आएगा, कैसा आएगा वो हम लोग ड्राइंग करेंगे, ठीक है। तो दिस इज योर फॉर्मेशन लेवल एंड दिस इज योर ग्राउंड लेवल, ठीक है। एक्चुअली अगर ये ग्राउंड को प्लॉट करेंगे रिड्यूस लेवल को हम, तो ऐसा आएगा ग्राउंड, ठीक है, और ये है तुम्हारा फॉर्मेशन लेवल। तो ये कैसे आया, वी विल सी, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन लेवल, अब यहाँ पे कितना हाइट है ये हमको निकालना है। से फॉर एग्जांपल ग्राउंड का कितना है यहाँ पे 108.6, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, ये है 109.25, ओके। तो ये जो जो दिया है प्लॉट करके हमने हर एक सेगमेंट या चेनेज में हमने प्लॉट करके ये लाइन ज्वाइन कर दिया है स्ट्रेट लाइन से, देन वी गॉट आवर की बोलते हैं क्या बोलते हैं ग्राउंड लेवल हमको मिल गया, ठीक है। लेकिन फॉर्मेशन लेवल निकालने के लिए वी मस्ट यूज दिस वैल्यू एंड फॉलिंग ग्रेडियंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब है सपोज ये एक डेटम पकड़ लिया, 108.6 को हमने डेटम पकड़ लिया, ठीक है। तो ये सब है तुम्हारा चेनेज, ठीक है, 22 तक, ओके। अब यहाँ पे तुम्हारा देखो रिड्यूस लेवल ऑफ फॉर्मेशन एट 14 चेनेज कितना है, 14 चेनेज में देखो 14 चेनेज में है 108.6, ठीक है। 15 चेनेज में 108.45, 16 चैनल्स में 108.3, ये क्या हो रहा है, देखो लेवल रिड्यूस हो रहा है, राइट, दिस इज नेगेटिव स्लोप, मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब क्या, ये 108 से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये यहाँ पे तो टच कर रहा था तो 108.6, अब यहाँ पे जब गए देखो ये 108.45, अब यहाँ पे जब गए देखो और कम गया, कमते कमते हम नीचे की तरफ जा रहे, देखो कमते कमते यहाँ तक पहुंच गया। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगा, फॉर दैट वी हैव टू यूज दिस 1 in 200। इसका मतलब क्या है कि सी
That means if you move horizontally 200 meter, okay, तो you will go down by 1 meter. ठीक है, अगर तुम हॉरिजॉन्टली 200 मीटर मूव करोगे, तुम्हारा रिड्यूस लेवल विल रिड्यूस बाय 1 मीटर. ओके, तो वैसे अब बोलो ये दोनों के बीच का कितना गैप है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस चेन एज एंड दिस चेन एज? व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है बोलो? 30 मैम. 30, राइट. दैट मीन्स सॉरी, ये है 30 मीटर. ओके, मतलब देखो अब यहाँ से हम जब मूव कर रहे हैं 30 मीटर, तो हम लोग ये नीचे कितना जाएंगे? यहाँ से हम 30 मीटर मूव किए हैं. ओके, इफ वी आर मूविंग हियर बाय 30 मीटर, अब हम नीचे कितना गए ये हमको कैलकुलेट करना है. इफ वी मूव 30 मीटर हॉरिजॉन्टली, देन व्हाट इज द रिडक्शन इन रिड्यूस लेवल? तो उसके लिए ये फॉलो करो. 200 के लिए 1 मीटर जा रहा है, तो 30 मीटर के लिए कितना है बोलो? 200 मीटर के लिए 1 मीटर जा रहा है, ठीक है, रिड्यूस हो रहा है, तो 30 मीटर के लिए कितना होगा? 30 मीटर के लिए कितना रिडक्शन होगा बोलो? 30/200 मैम. Simple. For 200 reduction is 1 meter. Okay, so for 30 meter reduction will be 1 by 200 into 30, right? तो आ रहा है कितना आ रहा है बोलो? पॉइंट कितना आएगा? 0 0 कट जाएगा, तो 3/2 है 1.5, 1.5 by 10 है 0.15, राइट? सो वी हैव टू रिड्यूस तुम्हारा रिड्यूस लेवल बाय 0.15 मीटर. तो सेम यहाँ पे देखो वही कर रहे हैं. पहले इस वाले में कितना था? 108.6. अब यहाँ पे 30 मीटर गए तो कितना नीचे जाना पड़ेगा? -0.15 नीचे, मतलब नीचे कितना रिड्यूस होगा? 1.5 मीटर नीचे जाना पड़ेगा. मतलब 108.6 माइनस 0.15. देखो करके कितना आ रहा है? 108.45. ठीक है, अब सिमिलरली इस वाले पॉइंट से अगर तुम हॉरिजॉन्टली 30 मीटर जाओगे, ठीक है, इस वाले पॉइंट से हॉरिजॉन्टली 30 मीटर जाओगे, तो कितना नीचे हम उतरेंगे? मतलब इस वाले पॉइंट से अगर 30 मीटर जाओगे तो कितना नीचेंगे? अगेन 0.15 हम नीचे उतरेंगे. ठीक है, फॉर दिस पॉइंट व्हाट वाज द रिड्यूस लेवल? इट वाज नाउ 108.45. तो फॉर दिस वन कितना हो जाएगा? 8.45 माइनस 0.15, देखो 108.3. तो प्रत्येक चेन एज के बाद हमको 0.15 डिड्यूस करते करते जाना है. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है? 108.15, मतलब ये क्या है? 108.3 माइनस 0.15, 108.15. अगेन यहाँ पे जब जाओगे तो 100 पीछे वाला का जो भी है रिड्यूस लेवल माइनस 0.15 कर दो, देखो इतना आ रहा है. यहाँ पे जब जाओगे तो पीछे वाला का रिड्यूस लेवल जितना है माइनस 0.15, राइट? देखो इतना करते करते हम यहाँ तक आएंगे. इज इट क्लियर हाउ वी ऑब्टेन दिस वैल्यूज? ये रिड्यूस लेवल. ठीक है, तो तुम लोग पहले रिड्यूस लेवल निकाल सकते हो, देन सिंपली प्लॉट करो. एक डेटम पकड़ लो, एक बेस लाइन पकड़ लो. सपोज 108.6 को हमने डेटम या बेस लाइन पकड़ लिया, उस हिसाब से कितना नीचे जाना चाहिए ये रिड्यूस लेवल का वैल्यू, ये पॉइंट तुम प्लॉट करते करते जाओ. फिर ड्रॉ मतलब जॉइन देम ऑल द पॉइंट्स बाय अ लाइन. So this line is nothing but the formation level of your earthwork, formation level of your road work. ओके, ये these are from we are looking from the side. ओके, ये रास्ते का साइड व्यू से हम लोग देख रहे हैं. ओके, so this level is the formation level. अब सेम कंसिडरिंग दिस एज अ बेस लाइन. ठीक है, इसको ये डैश डैश वाला लाइन जो है ब्लैक कलर का, इसको अगर हम कंसिडर करें एज अ बेस लाइन, प्लॉट द रिड्यूस लेवल ऑफ द ग्राउंड. देखो 14 नंबर चेन एज में कहाँ है? रिड्यूस लेवल कितना है? 108.6. ओके, सो हियर विल बी, यहीं पर ही तुम्हारा वो हो जाएगा ग्राउंड लेवल फर्स्ट का. ठीक है, यही ये पॉइंट होगा फर्स्ट वाला 14 चैनल में. दूसरा देखो 15 है तुम्हारा, 15 चैनल में 109.25, मतलब इट विल बी अबव दिस डेटम लाइन. तो कितना अबव है? आई एस्टिमेट करके करो. सपोज हमने बोला यहाँ पे है. ठीक है, अब दूसरा देखो 109.4, मतलब इससे और ऊपर होगा, राइट? ऐसे कर दिया. अब देखो ये है 108.85, मतलब इससे नीचे की तरफ होगा. ठीक है, तो हमने यहाँ पे नीचे के कर दिया, ऐसे प्लॉट कर दिया. अब दूसरा देखो 108.5,
अब ये वाला कहाँ होगा, ये जो डेटम है डेटम के नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये डेटम लाइन इट इज फॉर 108.6, ठीक है, और 18 चेनेज में हम लोग का है 108.5, मतलब समवेयर नीचे हो जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ। ओके, यहाँ पे नीचे में आ जाएगा। दूसरा देखो 107.25, ठीक है, तो इट विल बी समवेयर हियर, ये रेड लाइन से ऊपर ही होगा क्योंकि 125 यहाँ पे होगा, नीचे नीचे जाएंगे तो 85 और आएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा है 106.8, ओके, तो बोलो अभी कहाँ पे होगा। फॉर्मेशन लेवल नीचे चले जाए मैम। देखो ये फर्स्ट है, सेकंड है, ठीक है, थर्ड, ऐसे नीचे नीचे जा रहा है, देखो यहाँ पे पहुंच रहा है। ओ सॉरी, ये भी और नीचे होगा ना, हम भूल गए, ये और नीचे होगा, यहाँ पर है, ठीक है। दूसरा क्या है 106.8, ओके, फिर आएगा 107.15, ठीक है, फिर आ रहा है देखो 107.2। सो दिस पॉइंट्स आर फॉर द ग्राउंड लेवल, और ये रेड कलर का है फॉर द फॉर्मेशन लेवल। नाउ जॉइन दिस लाइन, ठीक है, मतलब तुम्हारा यहाँ पे है अर्थ ऊपर है और गाड़ी नीचे से जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे गाड़ी ऊपर में है और अर्थ नीचे पे है, तो कहाँ पे बैंकिंग होगा, कहाँ पे कटिंग होगा, बोलो। ये वाले सेक्शन में कटिंग होगा ना, बैंकिंग होगा, बोलो। यहाँ पे ग्राउंड लेवल इज अबव फॉर्मेशन लेवल, सो व्हाट वी हैव टू डू, योर रोड वर्क विल बी बिलो द ग्राउंड लेवल, ऐसा रास्ता बनाना है कि वो ग्राउंड लेवल से नीचे होना चाहिए। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, कटिंग और फिलिंग, कटिंग मैम। यस, हियर वी नीड टू डू कटिंग, हमको माटी निकाल के रखना है जिससे कि ये लेवल नीचे में पहुंच जाए, ओके। वेरएज यहाँ पे क्या है कि ग्राउंड नीचे है, अब हमको ये लेवल बढ़ा देना है, रास्ते का लेवल बढ़ा देना है, मतलब उसको ऊपर ऊपर भेज देना है, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, फिल। So this volume of earth is to be cutting earthwork in cutting यहाँ पे है, और ये है this much amount of volume is for earthwork in filling, तो वही तुमको एस्टिमेट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ये तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का डायग्राम भी हो गया है, ओके। तो फर्स्ट पोर्शन में तुम्हारा जो भी आएगा कटिंग का वॉल्यूम करेंगे, फिर तुम्हारा आएगा फिलिंग का। लेकिन देखो, अब देखो और एक मजेदार बात ये है कि सी हियर, फ्रॉम हियर टू हियर फुल क्या है, कटिंग है, देखो ईयर टू ईयर पूरा हमको क्या करना है, कटिंग ही है ना। फ्रॉम यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, दिस वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या आ रहा है, कटिंग में ही आ रहा है, तो बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फ्रॉम हियर टू हियर ऑल द सेगमेंट क्या करना है, थ्रू आउट द सेगमेंट हमको कटिंग ही करना है, राइट। वहां पे बैंकिंग आ रहा है, ये थ्रू आउट द सेगमेंट देखो बैंकिंग कुछ आ रहा है, बोलो। না ম্যাম, এখানে তো কোনো ব্যাংকিং আসবে না। ना, ये पूरा एरिया तुम्हारा क्या है, देखो ये पूरा एरिया कटिंग में आ रहा है, কাটিং राइट, এর फ्रॉम মধ্যে पूरा। अब देखो 15 to 16 भी देखो, सब एरिया क्या इसमें आ रहा है, कटिंग में ही आ কাটিং। रहा है। 16 to 17 भी देखो, ये भी कटिंग में आ रहा है, ठीक है। वैसे 17 to 18 भी कटिंग में आ रहा है, ओके। अब वैसे अगर हम इस तरफ करेंगे तो देखो, यहाँ से अगर करेंगे ये पूरा, मतलब 22 से 21 ये पूरा आ रहा है तुम्हारा फीलिंग में, ठीक है। 20 से 21 ये भी पूरा फीलिंग में ही आ रहा है, कुछ कटिंग वटिंग नहीं आ रहा है। 19 से लेकर 20 ये भी पूरा तुम्हारा फीलिंग में ही आ रहा है, ठीक है। बट ये जो है दिस एरिया, ये जो एरिया है, मतलब ये जो सेगमेंट है, ये जो स्ट्रेच फ्रॉम 18 टू 19, तो इसमें क्या पूरा कटिंग है पूरा या फीलिंग है, ऐसा है, पूरा फीलिंग पूरा कटिंग आ रहा है, ম্যাম দুটোই হবে। नहीं, यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा कुछ पोर्शन आ रहा है, देखो कुछ कुछ पोर्शन आ रहा है कटिंग, ठीक है, और कुछ कुछ पोर्शन आ रहा है फीलिंग, ठीक है। वेरेज बाकी सेगमेंट में पूरा एरिया ही तुम्हारा कटिंग में आ रहा है, पूरा एरिया फीलिंग में आ रहा है, बट ओनली फॉर दिस सेगमेंट फ्रॉम 18th to 19th देयर आर 2 केसेस, मतलब उसमें कुछ लेंथ तुम्हारा कटिंग में आएगा, कुछ लेंथ तुम्हारा फीलिंग में आएगा। तो नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस लेंथ, मतलब कितना लेंथ तुम्हारा कटिंग में आ रहा है
और कितना लेंथ तुम्हारा फिलिंग में आ रहा है, सेपरेट करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आएगा तब हम लोग का साइड स्लोप वेरी कर रहा है। देखो जब कटिंग आ रहा है तो साइड स्लोप कितना आना चाहिए था, साइड स्लोप आना चाहिए था 1.2:1। जब फिलिंग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है एम्बैकमेंट में साइड स्लोप 2:1। तो ऑब्वियसली एरिया फॉर्मूला ये सब डिफरेंट करेगा। ओके, सो वी कैन नॉट यूज द सेम एरिया फॉर्मूला थ्रू आउट द लेंथ फॉर दिस सेगमेंट। तो ये लेंथ कितना है कटिंग का वो सेपरेट करते हैं, ये लेंथ कितना है कटिंग फिलिंग का वो हम सेपरेट कर देते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए इसको हम बड़ा करके देखेंगे। सो इट विल लुक लाइक दिस। सपोज दिस इज योर 18th चेन एज, ठीक है। ये जो चेन है ये जो चेन एज है ये है 18th चेन एज, और ये जो चेन एज है ये है तुम्हारा 19th चेन एज, ठीक है। तो ये 18 है, ये 19 है, ठीक है। तो उसके लिए देखो ये एक ट्राइंगल हो गया, ये एक ट्राइंगल, दोज आर सिमिलर ट्राइंगल हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल हम बोल सकते हैं। ओके, अब देखो अब क्या निकालना है इसका, ये डिस्टेंस कितना है। इसके लिए हमको क्या चाहिए, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, टेल मी नाउ व्हाट इज दिस डिस्टेंस। ये जो 0.5 आ रहा है ये डिस्टेंस कैसे आया बोलो, और यहाँ पे जो 0.6 आ रहा है ये डिस्टेंस कैसे आया बोलो, दिस डिस्टेंस कैसे आया। वही तो मैम, डिस्टेंस डिफरेंस तो Yes, this is, see, this gap is nothing but the d values. Please remember these gaps are nothing but the d values. Okay, यहीं से हमको d वैल्यू निकालना है पड़ेगा। जैसे फर्स्ट में कोई d का वैल्यू 0 है क्योंकि दोनों का एक ही लेवल में है, ठीक है। दूसरे में देखो ग्राउंड का लेवल ऊपर में है, फॉर्मेशन लेवल नीचे है, कटिंग करना पड़ेगा, कितना हाइट कटिंग करना है हमको। सो 109.25 माइनस 108.45 इतना हाइट हमको कटिंग करना है, डेप्थ हमको कटिंग करना है। यहाँ पे कितना कटिंग है 109.4 माइनस 108.3, ठीक है। सिमिलरली इसका भी वही सब्ट्रैक्ट करते जाओ, तो यहाँ पे भी वही है। तो दिस डेप्थ ऑफ कटिंग इन दिस सेक्शन इज 108.5 माइनस 100 इज देखो 100.5, ठीक है। दोनों को माइनस करके देखो ये आएगा। सिमिलरली यहाँ पे डेप्थ हाइट ऑफ फिलिंग कितना है 107.85 माइनस 107.25 देखो 0.6। ओके, ये दोनों को माइनस करके देखो ये 0.6 आ रहा है। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन 18th एंड 19th चैनल्स कितना है, एक एक चैनल्स के सब्सिक्वेंट चैनल्स के बीच में डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस कितना था 30, राइट। सो ये भी 30 है, 18 से 19 30 है, ठीक है। सो दिस इज 30 मीटर। सपोज हमने ये लेंथ पकड़ा है x, मतलब 18 चैनल से कहाँ तक तुम्हारा ये पॉइंट मीट कर रहा है, मतलब ग्राउंड लेवल और ये वाला फॉर्मेशन लेवल ज्वाइन कर रहा है। नाउ टेल मी यहाँ पे डेप्थ कितना है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, व्हाट इज द डेप्थ और कटिंग जीरो हाइट। मैम। यस, यहाँ पे d का वैल्यू 0, ये याद रखना। ओके, d का वैल्यू इज 0 एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, हम इसको एक लाइन से बना के अब इसको एक सेपरेट चैनल पकड़ लेंगे। वी विल कंसिडर दिस एज आवर सेपरेट चैनल। जैसे ये 18 से लेकर 19 हो गया, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे 18 से लेकर 18.5 चैनल, ठीक है। फिर 18.5 से लेकर 19 चैनल, क्योंकि 18 से लेकर 18.5 पूरा लेंथ विल बी इन कटिंग, फिर 18.5 से लेकर 19 चैनल तक पूरा लेंथ विल बी इन फिलिंग। ओके, तो इट विल बी इजी फॉर अस। तो वी हैव टू नाउ डिटरमाइन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस चेनेज। ओके, मतलब 18 से लेकर 18.5 तक का डिस्टेंस कितना है वो हमको मेजर करना है। सपोज दिस इज 18, दिस इज 18.5। ओके, सो उसको हम बोलेंगे, सपोज ये डिस्टेंस है x, जो कि ये है देखो 18 से, और बीच में जो है वो तुम्हारा है देखो ये बीच वाला जो है इट इज 18.5, ठीक है। ये है 18.5, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अगर x है तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस फ्रॉम 18.5 से 9, टोटल डिस्टेंस कितना है 19, 18 से 19, टोटल डिस्टेंस इज 30, ठीक है। उसमें से फ्रॉम हियर टू हियर इट इज, इफ इट इज x, देन व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये टोटल है 30, यहाँ से लेकर यहाँ तक है तुम्हारा 30, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने पकड़ा है x, so what is this distance then, if this total distance is 30 and this distance is x, well what is this distance,
बोलो। 30 माइनस एक्स। यस, देखो ये तो है 30 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो देखो, तो ये x है, दिस इज 30 माइनस एक्स, ये है 0.5, दिस इज 0.6। नाउ रिलेशन इज नोन टू यू। नाउ कैलकुलेट दिस x डिस्टेंस, कितना होगा बोलो, x का वैल्यू कितना होगा। हम ये लिख सकते हैं ना, फॉर दिस ट्राइंगल this perpendicular by base will be equals to for this triangle perpendicular by base, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है कितना, राइट वाला लेफ्ट वाले के लिए ट्राइंगल के लिए, इस वाले ट्राइंगल के लिए 0.5 है, बाई एक्स करो, ठीक है। फिर इसको हम इक्वेट कर देंगे, इस वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कितना है 0.6 है, ओके। और इसका बेस कितना है 30 माइनस एक्स। नाउ व्हाट इज द एक्स वैल्यू देन, सिंपल, एक्स का वैल्यू निकालो कितना होगा। समझ में आया। तो बेस परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, सिमिलर ट्रायंगल मेथड का जो फॉर्मूला है, ओके। तो करने से देखो, ये बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस बाय परपेंडिकुलर इक्वेट कर दिया हमने, ठीक है। करके देखो x का वैल्यू आएगा 13.63 अप्रोक्सीमेटली, वी कैन कंसीडर इट एज 14। मतलब यहाँ पे अगर तुमने ड्रॉ किया सेगमेंट, मतलब क्रॉस क्या बोलते हैं, एक चेनेज ड्रॉ किया है, ठीक है। सो दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, इट इज 14 मीटर, ओके। सो देखो ये 14 मीटर लेंथ क्या है, इट इज इन कटिंग। अब बचा ये डिस्टेंस कितना, अगर ये 14 मीटर है तो ये डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस देन 16 मैम। yes this will be 16, 30 minus 14, 13 minus x 16, तो 16 मतलब 14 distance, 14 length is in cutting, whereas 16 length, 16 meter length is in filling, ओके। एंड ये वाला पॉइंट हमको चेनेज रख देना है, सपोज इसको हम 18.5 लग देंगे, या इसको हम पास बोल देंगे। पास मतलब जहां पे तुम्हारा ये एफएल पास कर दिया ग्राउंड को, मतलब ये इंटरसेक्ट जहां पे कर रहा है इस पॉइंट को, ओके। पास, हम लोग इसको पास भी लिख सकते हैं। तो हम लोग को क्या चाहिए था, डेप्थ चाहिए था, ठीक है। डेप्थ के लिए हमको ये रिड्यूस लेवल चाहिए था, एंड वी नीड द लेंथ ऑल्सो। सबका लेंथ 30-30 है एक्सेप्ट दिस रीजन, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 14 होगा और यहाँ पे तुम्हारा 16 होगा, और बाकी फिर से 30-30-30 रहेगा लेंथ का वैल्यू, ओके। नाउ वी विल गो टू द कैलकुलेशंस। तो ये देखो, ये -0.8 का मतलब है इट इज इन कटिंग। देखो ये फर्स्ट में है कटिंग, हमने यहाँ पे क्या किया है, डिफरेंस ऑफ जीएल एंड एफएल पकड़ लिया है, ठीक है। ग्राउंड लेवल और एफएल का डिफरेंस पकड़ के हमने ये कर दिया है। तो जहां जहां पे माइनस आ रहा है उसको हमने कर दिया क्या, कटिंग कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा ही था, डेप्थ ऑफ कटिंग एंड बैंकिंग्स आर डिनोटेड बाय नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन। देखो कभी कभी कुछ भी हो सकता है, तुम ग्राउंड लेवल माइनस एफएल कर सकते हो, या एफएल माइनस ग्राउंड लेवल भी कर सकते हो, ठीक है। तो तुमको सिर्फ ध्यान में रखना है कि ग्राउंड लेवल ऊपर है या एफएल ऊपर है। अगर ग्राउंड लेवल ऊपर है दैट मीन्स जो भी डी का वैल्यू आएगा दैट विल गिव यू कटिंग वैल्यू, ठीक है। अगर ग्राउंड लेवल नीचे है, जो भी डी का वैल्यू आएगा दैट विल गिव यू हाइट ऑफ फिलिंग, ओके। तो यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट करके देख लिया है कि देखो फॉर्मेशन, इन लोगों ने क्या किया है, फॉर्मेशन माइनस ग्राउंड लेवल 0, ठीक है। फॉर्मेशन माइनस ग्राउंड लेवल नेगेटिव, सो ये क्या है, कटिंग आ रहा है, ठीक है। फिर फॉर्मेशन माइनस ग्राउंड लेवल नेगेटिव, अगेन कटिंग, फॉर्मेशन माइनस ग्राउंड लेवल नेगेटिव, अगेन कटिंग। देखो यहाँ तक कटिंग कटिंग है, 18 चेनेज तक पूरा कटिंग कटिंग है, ठीक है। अब 19 चेनेज से क्या स्टार्ट हो रहा है, देखो तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये फीलिंग में आ रहा है, मतलब ग्राउंड लेवल फॉर्मेशन लेवल माइनस ग्राउंड लेवल, दैट मीन्स फॉर्मेशन लेवल इज अबव ग्राउंड लेवल, इसलिए दिस माइनस दिस करने से पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। सो ये हमको क्या दे रहा है, हाइट दे रहा है, मतलब हाइट ऑफ फीलिंग, ठीक है। तो फीलिंग को यहाँ पे पॉजिटिव पकड़ा है हमने, ओके। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद नेगेटिव और पॉजिटिव साइन, इट इज अप टू यू। तुम इसको साइन नहीं देकर भी रख सकते हो, नो नीड, दिस साइन इज ओनली फॉर सिग्निफिकेंस कि ये वाला वैल्यू कटिंग में जाएगा ना एम्बैकमेंट में जाएगा। देखो यहाँ पे तो है ना, इट इज इन कटिंग और बैंकिंग,
तो ये वाला वैल्यू वॉल्यूम कटिंग में जाना चाहिए ना बैंकिंग में जाना चाहिए, उसके लिए सिर्फ ये नेगेटिव साइन दिया है, अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ दिस साइन। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या दिया, 14 में क्या था, देखो 14 में दिस माइनस दिस जीरो है, डेप्थ का वैल्यू जीरो है, ठीक है। 15 में तुम्हारा डेप्थ ऑफ कटिंग कितना है, देखो दिस माइनस दिस करके देखो -0.8 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 15 चैनल 16 चैनल में कितना है, देखो 109.4 माइनस 108.3, देखो 1.1। ओके, दूसरा क्या है 108.85 माइनस 108.15, तो 0.7, ठीक है। ये वाला तो हमने किया है 108.5 माइनस 108, तो 0.5। ओके, अब देखो ये जो पॉइंट हमने निकाला था इसको हमने क्या बोला है, पास। ये पीछे उसमें नहीं था, ये हमने डिटरमाइन किया है। ओके, इट वाज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज डिटरमाइंड बाय अस। तो ये है पास, तो इसमें जीरो है क्योंकि यहाँ पे दोनों का लेवल सेम है, सो इट इज जीरो। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट इट इज हाउ मच, देखो दिस माइनस दिस करके जो वैल्यू है यहाँ पे बिठाते जाओ अब जैसे जैसे, ठीक है। दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस बिठाते गए, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट मेथड यूज करते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट वी विल टेक द एवरेज वैल्यू ऑफ द डेप्थ। तो देखो एवरेज करने से क्या आएगा, 0.80 और 0.8 का एवरेज हमने यहाँ पे लग दिया है, कितना है 0.4, ऐसे करना है। ओके, इन दोनों का एवरेज ये है, ओके, फिर इन दोनों का एवरेज ये है, फिर इन दोनों का एवरेज ये है, ऐसा करते करते हम जाएंगे। फर्स्ट ब्लैंक रख देंगे, ठीक है, देन कीप ऑन डूइंग लाइक दिस। देखो 0 और 0.5, डोंट कंसिडर दिस नेगेटिव। ओके, ये बार बार हम बोल रहे हैं, नेगेटिव साइन सिर्फ बताने के लिए कि कहाँ कहाँ पे कटिंग आएगा, ठीक है। तो देखो 0.5 0, 0.5 प्लस 0 बाई 2 0.25। ओके, अब 0 प्लस 0.6 बाई 2 0.3, ठीक है। तो वे सबका एवरेज करते करते हम लोग जाएंगे। अब सिंपली बी हमको पता है, ठीक है, बी इज गिवन, एस इज ऑल्सो गिवन फॉर कटिंग, एस फॉर बैंकिंग हमको दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बी डी प्लस एस डी स्क्वायर फॉर्मूला, बी डी एम प्लस एस डी एम स्क्वायर। So B is given, B is how much, 12. So for this first case, what is the B value, B is 12, ठीक है। DM कितना है, DM is 0.4 प्लस S कितना है, this is for cutting, so S will be 1.5। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला देखो कैसे आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम B है तुम्हारा 12 इंटू DM है 0.4 प्लस S है तुम्हारा 1.5 इंटू 0.4 स्क्वायर करके अगर देखोगे तो ये आएगा, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर दिस बी इज अगेन 12, ठीक है, 12 इंटू 0.95 प्लस एस इज इन, दिस वन इज इन कटिंग, नेगेटिव साइन है मतलब कटिंग में है, तो एस का वैल्यू 1.5 होगा, ठीक है। तो 1.5 इंटू 0.95 स्क्वायर, ठीक है, ये कर दिया। अब देखो जब हम लोग पॉजिटिव वाले में जा रहे हैं, जैसे ये है पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब दिस इज फॉर बैंकिंग, इसका फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, बी इज 12, डीएम कितना है, डीएम इज तुम्हारा है 0.3, सो इंटू 0.3 बी डी एम प्लस एस कितना होगा, यहाँ पे बोलो व्हाट इज द एस वैल्यू फॉर बैंकिंग, 2 मैम। yes, now it will be 2 into 0.3 square। okay, तो वैसे नीचे भी वही यही फॉर्मूला हो जाएगा, 12 into dm प्लस 2 into dm स्क्वायर, ठीक है। टिल यहाँ पर तुम्हारा s का वैल्यू था 1.2 एंड फ्रॉम हियर योर s का वैल्यू हो जाएगा 2, सॉरी दिस इज 1.5। ओके, तो लाइक दिस यू विल कैलकुलेट। अब लेंथ बिठाना है, तो फर्स्ट सेगमेंट का देखो 30 30 30 30, जहाँ पे पास आ रहा है वहां पे सिर्फ हमको कितना है, जहां जहां पे कटिंग है, फॉर कटिंग इट इज 14, उसके बाद आ रहा है तुम्हारा फिलिंग, तो फिलिंग के लिए था कितना, x का वैल्यू था, देखो ये जो था ये डिस्टेंस था 14, ठीक है, यहाँ तक 14, फिर 14 से 16 वो यहाँ पे दिया है, देखो 14 फिर 16, ठीक है, 14 देन 16। ओके, अब सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, तो नेगेटिव नेगेटिव जहां पर है दिस इज फॉर कटिंग, तो ये वाला वॉल्यूम कटिंग में आएगा, मतलब एरिया इंटू लेंथ 5.04 इंटू लेंथ, यहाँ पे 12.75 इंटू लेंथ यहाँ पे, ठीक है, कटिंग में। अब जहां से तुम्हारा पॉजिटिव स्टार्ट हो रहा है, देखो
वो आएगा तुम्हारा बैंकिंग में। ओके, सो वी विल सम अप, तो ये पूरा टोटल कर दोगे तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कटिंग एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ बैंकिंग। ये वाला हम बाद में बोलेंगे, एरिया ऑफ टर्फिंग, दिस विल डिस्कस लेटर। ओके, so once you know the volume, once you know the volume of banking, simply multiply with the rate। वैसे टर्फिंग का भी एरिया निकल आएगा, मल्टीप्लाई विद द रेट, विल गेट द टोटल कॉस्ट। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। यू प्लीज गो थ्रू दिस नोट्स। ओके ম্যাম এই পিডিএফটা আপলোড হয়নি, আপলোড হয়নি, আমি করে আগেরটা করেছিলাম। দিয়েছিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি করে দেবো ওটা আবার। আপনি আগেরটা করেছিলেন। হ্যাঁ আগেটা করে দিয়েছি, আচ্ছা হ্যাঁ ठीक है, मैं कर देव ताहले। ओके देन, थैंक यू। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट क्लास तो 3 बजे से है, तो तुम लोग आ जाओ 10 मिनट का ब्रेक करके। 3:10 में आ जाओ, 3:10 में आ जाओ, विद इन 3:10। ओके, फॉर द नेक्स्ट क्लास। या शुड आई